Good morning students, I am your Shaista teacher. I welcome you all in our today's mathematics learning session. Dear students, today I am going to teach you chapter number 4, ratio and proportion. So what is mean by ratio? Ratio means the smallest value of any fraction is known as ratio. So simplest meaning is the smallest value of any fraction is known as ratio. Is that clear? For example, here 25 upon 35. Let us take the comparison between 25 and 35. So here 25 upon 35. Here we are finding the ratio of 25 upon 35. So here you have to divide this two number by the same number. Okay. So as you know that 5 5 is a 25 and 5 7 is a 35. Both this number get divided by 5. So 5 5 is a 25. Here we will put 5 5 is a 25. So 5 divided by 5. And here 5 7s are 35. Okay. So here 5 upon 7. Here you can see this 5 is the numerator and 7 is the denominator. So the ratio for 5 upon 7 is 5 is to 7, or we can say that the ratio for 25 upon 35, after calculating we get here 5 upon 7, that means 5 is to 7. Is that clear, my dear students? So here we will put 5 is to 7. Okay, so the ratio for 25 upon 35 is 5 is to 7. After this, now let's solve other example. Here 48 upon 60. 48 upon 60. So both this number, the numerator is 48 and denominator is 60. So here we can easily divide by this two number by 12. Okay, easily divisible by 12. So 12 4s are 48 and 12 5s are 60. So after dividing this two number, that is numerator and denominator, by 12, we get here 12 4s are 48. So here we will put 48, 12 4s are 48 and 12 5s are 60. So the numerator is 4 and denominator is 5. That means 4 upon 5. Okay. So denominator is 5 here. So that means 4 upon 5. So the ratio for 48 upon 60 is 4 upon 5. That is equal to 4 is to 5. So we will put this value in ratios form. So 4 upon 5 is nothing but 4 is to 5. Okay. So here we will put 4 is to 5. So the answer for 48 upon 60 ratio is 4 is to 5. Is that clear, my dear students? After this, we'll see some more example. Now here, let's solve the third example. Here, 17 upon 34. As you know that 17 1s are 17 and 17 2s are 34. That means 17 के टेबल में ही हम 34 को डिवाइड कर सकते हैं. So 17 1s are 17 and 17 2s are 34. Is that clear? So here we will put 1 upon 2. Okay, so 1 upon 2 is nothing but when we are writing this in ratio form, so we will put like this, 1 is to 2. That's clear, my dear students? So here 1 is to 2 is the ratio for 17 upon 34. Okay, so here we will put 1 is to 2 for 17 upon 34. These all are the very basic ratio which we have calculated here. Now let's see what is mean by proportion. Proportion is nothing but equal, same quantity, same ratio. So when two or more than two fraction have same ratio, they are said to be in proportion. Okay, they are said to be in proportion. So here let us take example of 25 upon 50. So 25 upon 50. After dividing this, 25 1s are 25 and 25 2s are 50. Okay, this is the first pair. So 25 upon 50 is the first pair. So 25 1s are 25, 25 2s are 50. Now let's compare this 25 upon 50 with other number. Okay, so let's take 12 upon 24. So 12 1s are 12 and 12 2s are 24. After comparing these two, 25 upon 50 and 12 upon 24, we get here same ratio, that is 1 is to 2. आप देख सकते हो 25 upon 50 को डिवाइड करके हमें 1 upon 2 मिला. सेम 12 upon 24 को डिवाइड करके भी हमें 1 upon 2 मिल रहा है. नाउ लेट्स सी द थर्ड पेयर. 17 upon 34 को हम डिवाइड करते हैं. सो 17 और 34 को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 17 1s are 17 and 17 2s are 34. So the ratio for 17 upon 34 is 1 is to 2, 1 upon 2. So all these three pairs are equal with each other. So we can say that 25 upon 50 is equal with 12 upon 24. Okay, 25 upon 50 is equal to 12 upon 24. Why? Because their ratios are equal. Okay, 1 upon 2.
same ratio, 12 upon 24, okay, equal. Now here this is also equal to 17 upon 34, okay. So 17 upon 34. So all these three pairs are equal. Why? Because their ratios are equal, their ratios are same, okay. So here we can say that they have same ratio, so they are said to be in proportion. So all these three pairs are in proportion because they have similar ratio, they have same ratio, or we can say that they have equal ratio, that is 1 upon 2, okay. So here 1:2 is the equal ratio for all the three pairs. Now let's see proportional fraction. Here proportional fraction means, what do you understand when I say proportional fraction? Okay, so proportional fraction means you can multiply the numerator and denominator of the given ratio to get proportional fraction. Simply we have to multiply the numerator and the denominator to get here proportional fraction. We want here proportional fraction. For that we have to multiply the numerator and denominator. For example, 3 upon 4. Here 3 is the numerator and 4 is the denominator. So we can say that here we have to here we have to do a simple multiplication where numerator and denominator, okay. So 3 1s are 3, 3 2s are 6, okay. We will multiply this 3 by 2 and 4 by other number, okay. So 4 2s are 8, okay. So 3 1s are 3, 3 2s are 6 and 4 2s are 8, like this, okay. So let's see how to multiply this two numbers. So 3 multiply by and 4 multiply by, because our proportional fraction means says that you can multiply the numerator and denominator of the given ratio to get proportional fraction. Here we want proportional fraction. So 3 multiply by 2 and 4 will multiply by again 2, okay. So 4 2s is how much? 8, okay, and 3 2s are 6, okay. So here we will do the calculation here, small part of calculation. So now here you can see 3 2s are 6 and 4 2s are 8. Here you can see जिस नंबर को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वही नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. So 3 2s are 6 and 4 2s are 8. So we can say that after multiplying the given ratio to get proportional fraction, okay. So now here 3 upon 4. So 3 upon 4 will multiply by 5. So numerator में भी हमने 5 से multiply किया, denominator में भी 5 से multiply किया, तो 3 5 is 15 and 4 5 is 20 मिला. Now here 3 upon 4 को हमने 8 से multiply किया, 3 8s and 4 8s. So 3 8s are 24 and 4 8s are 32, okay. So here 4 8s are 32. So here you can see that 6 upon 8, 15 upon 20 and 24 upon 32. Okay, 6 upon 8 is equal to 15 upon 20 because it is multiplying by the same number. 3 upon 4, 15 upon 4, 20, same number. 3 upon 4 and 24 upon 32, same number. 3 upon 4. So all these three numbers are having same ratios, okay. So they are in proportional fraction. So we can say that all these three numbers, all these three pairs are equal. So here 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So 3 upon 4, 2 3s are 6 and 2 4s are 8. Now here you can say that 5 3s are 15 and 5 4s are 20. So 5 3s are, so here 3 is the numerator and 5 4s are 20. That means 4 is the denominator. Now let's check third one. Here 8 3s are 24 and 8 4s are 32. So 8 3s are, 3 is the numerator and 4 is the denominator. Okay, now here you can see all these three pairs are equal. All these three pairs of a number are equal because they all are same proportional fraction. Okay, they are getting their ratios to get same proportional fraction. Okay, their ratios are same proportional fraction. So all these three numbers are equal. Is that clear, my dear students? So here you can see this, all these three pairs are equal. So here we can say that all these three pairs are equal proportion. So 6 upon 8, 15 upon 20 and 24 upon 34 all are equal. Okay, because their ratios are equal. So 3 upon 4 is the common ratio for all these three pairs. So is that clear, my dear students? So all these three pairs are equal. Now let us study proportional topic in detail. Let's study types of proportion. Proportion means two ratios which have been set equal to each other. We mean that this in the sense of two fractions being equal to each other. Here two types of proportion. First one is direct proportion. Direct proportion is that when one quantity increases, other one quantity also increases. Or we can say that when one quantity decreases,
अदर वन क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, यानी कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसी के साथ उसके कंपैरिजन वाली जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होती है, अगर डिक्रीज होती है तो वो भी डिक्रीज। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं है। इनवर्स का मीनिंग बोलता है इनवर्स प्रपोर्शन इज दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज अदर वन क्वांटिटी डिक्रीज, यानी कि अगर इनवर्स में एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो अदर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज इनवर्स में एग्जाम्पल देती हूँ, अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो कस्टमर क्या करेंगे, नहीं परचेस करेंगे, कम परचेस करेंगे। ठीक है, तो अगर ज्यादा है तो कम परचेज है, लेकिन अगर कम है तो ज्यादा परचेज होगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड का प्राइस 20,000 हो गया तो क्या होगा, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होगा और ज्यादा परचेज करेगा। ठीक है, कम हो गया ना। अभी देखो हम लोग डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम हमारी कार को यहाँ पर पेट्रोल पंप, अब दिख रहा है ना ये पेट्रोल पंप, आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, पेट्रोल फिल करते हैं ना अपने कार में। ठीक है, तो अब हम हमारी कार को यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर हम अपनी कार में पेट्रोल फिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेलर है, ठीक है, जो पेट्रोल फिल कर रहा है, ये जो पर्सन है ये हमसे मनी चार्ज करेगा। ठीक है, ये पर्सन हमारे इस गाड़ी में क्या कर रहा है, पेट्रोल फिल कर रहा है। हमने इसे मान लीजिए बोला कि 2 लीटर पेट्रोल मेरी कार में फिल कर। ठीक है, तो अभी ये मेरी कार में 2 लीटर पेट्रोल को फुल करेगा। ठीक है, सो अभी ये क्या होगा, अगर 2 लीटर है तो चार्जेस कम है, लेकिन अगर यही मैं बोलती हूँ उसको कि मेरी जो कार है इसके अंदर, इस डिग्गी के अंदर 8 लीटर तक यानी कि फुल फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा चार्ज करेगा। यानी कि अगर कम हम पेट्रोल फिल करा रहे हैं तो कम मनी पे करना होगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा यानी कि फुल पे करा रहे तो हमको फुल अगर फिल करा रहे 8 लीटर तो क्या होगा, हमें ज़्यादा पे करना होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर मैं पेट्रोल ज़्यादा परचेज करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मनी पे करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही मैं कम पेट्रोल परचेज करती हूँ तो मुझे कम पेट्रोल के लिए कम अमाउंट उसके लिए पे करना होगा। यानी कि अगर क्वांटिटी जो पेट्रोल अगर इंक्रीज हो रहा है तो एट द सेम टाइम प्राइस भी इंक्रीज होगा, और अगर यही मैं अगर परचेस कम करूं पेट्रोल को तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम रहेगा, यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज क्वांटिटी है तो प्राइस भी डिक्रीज है। ठीक है, लेकिन अगर वही क्वांटिटी यानी कि पेट्रोल अगर मैं ज़्यादा परचेस करूंगी, फुल परचेस करूंगी, मेरे को फुल टैंक करना है, मेरी डिग्गी का मुझे फुल पेट्रोल मतलब करना है। ठीक है, फिल करना है, क्योंकि मुझे गाँव जाना है या मुझे कहीं दूर प्लेस पे जाना है तो मुझे चाहिए कि मैं एक ही बार फुल कर दूँ, तो मुझे वहाँ पर ज़्यादा पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मुंबई से रत्नागिरी जाना है, ठीक है, और यहाँ पर बीच में कोई मुझे पेट्रोल पंप नहीं होगा तो मुझे फुल के लिए ज़्यादा पे करना होगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग है ना, एक ये पेट्रोल पंप में हमारी गाड़ी में हमने पेट्रोल डाल चुके हैं। अभी आप दिख रहा है ये आपको हाईवे का है। ठीक है, अभी वो जो पेट्रोल पंप का शॉप वो था वहाँ पर से टोल नाका जो था जहाँ पर पेट्रोल फिल करते हैं वो खत्म हो चुका है। अब हम ऑन द वे पे, हमारे रोड पे से हमारी गाड़ी अभी जाएंगी। ठीक है, अभी हमारी कार जो है इस रोड पे है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है हमारे लॉजिक टू लर्न मैथमेटिक्स विद शाइस्ता टीचर का। ठीक है, अब देखो ये कार जब यहाँ से मूव करती है तो मोर पेट्रोल मोर किलोमीटर, अभी ज़्यादा पेट्रोल है तो ज़्यादा किलोमीटर चल सकती है। रत्नागिरी, मुंबई से रत्नागिरी इजीली जा सकती है। 1 लीटर पे 20 किलोमीटर रन करेंगी, 2 लीटर पे 40 किलोमीटर रन करेंगी और 3 लीटर पे 60 किलोमीटर रन करेंगी। तो समझ में आया आपको? अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा है, डिस्टेंस भी वो ज़्यादा कवर करेगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी कम रहेंगी तो डिस्टेंस भी वो कम कवर करेंगी, क्योंकि हमने प्राइस भी तो कम पे किया है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो समझ में आया आपको? यानी कि अगर एक क्वांटिटी की प्राइस कम होगी तो एट द सेम टाइम दूसरा भी कम होगा, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मीनिंग ही है, अगर 1 क्वांटिटी इंक्रीज है तो अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। 1 लीटर के लिए 20 किलोमीटर रन करेगी, 2 लीटर के लिए 40 किलोमीटर रन करेगी, 3 लीटर्स के लिए 60 किलोमीटर रन करेगी। इज दैट क्लियर? यानी कि मोर पेट्रोल मोर किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अगर यही कार की अगर डिग्गी में हाफ रखती तो क्या होता, कम ही रन करती, लेकिन मैंने क्यों फुल क्यों, क्योंकि मुझे पता है मुझे मुंबई से रत्नागिरी जाना है और वहाँ पर बीच में मुझे कोई भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा जहाँ पर फिल मैं पेट्रोल के अंदर अपना गाड़ी में फिल कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक साथ ही फुल कर दिया उसको। तो अगर मैंने 60 किलोमीटर फुल मतलब 60 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस है तो मैंने 3 लीटर फुल कर दिया, दैट मीन्स मेरी कार जो है वो इजीली मूव कर सकती है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो सिंपल एंड सो इजी ना। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप क्या देख रहे हो, 1 क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीज। अगर एक क्वांटिटी कोई डिक्रीज हो रही है एट द सेम टाइम वही सिमिलर क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी। समझ में? तो यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कितना सिंपल है। नाउ लेट्स सी द इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी यहाँ पर एक इनवर्स वेरिएशन की सिचुएशन देखो। ठीक है, यहाँ पर ये प्लेस देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम शो किया आपको, अब देखो और मुझे बताओ।
यस, यू आर करेक्ट। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेबर्स है ना काम कर रहे हैं, आपको दिख रहा है ना, ये सारे लेबर्स क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। किसका? यहाँ पर बिल्डिंग्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। आप देख रहे हो ना आसपास पूरे बिल्डिंग्स फॉर्म हो रही है, ठीक है। अब देखो लेबर्स कितने कम है, आपको दिखाई देंगे, सारे मैं लेबर्स बना रही हूँ, ठीक है। अब ये सब लेबर्स मिलके ना यहाँ पर है ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। और जब ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी ना तो यहाँ पर है ना फैमिलीज रहने को आएंगी, बहुत सारी फैमिलीज, ठीक है। तो फिर बाद में क्या आएंगी, सबकी फैमिली, वो जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, ऐसे सब रहेंगे। तो अब देखो फैमिली कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में लेबर बहुत कम है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में लेबर कम है, तो यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, लेबर कम है लेकिन फैमिली कैसी है, ज़्यादा है। जो घर में वो मेंबर्स आएंगे रहने के लिए, फ्लैट में जो मेंबर्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे। दैट मीन्स इनवर्स प्रपोर्शन है। इनवर्स प्रपोर्शन इज दैट when one quantity increase and other one quantity decrease, or when one quantity decrease other one increase, number of people are inversely proportion to work done, ठीक है। In this image you can see this number of people are inversely proportion to work done. That means labors are few but the family members and the people who are living in this building are more than the labor, okay, so they are inversely proportion. Is that clear? Similarly, we can take the gold example. If the price of gold increase, people will buy decrease, okay, and if the price decrease, people will buy more, okay. That means if price increase, demand decrease, and if price decrease, demand increase, okay. So these are the example for inverse proportion. That means if one quantity increases, the other one goes decreases. If one quantity decreases, other one goes increases. Is that clear? That means अगर increase होगा तो उसके अपोजिट डिक्रीज होगा, ठीक है। बट अगर वही डिक्रीज हो रहा है तो उसका प्राइस, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। Now let's solve practice set 4.1. Here question number 1 says that from the following pair of number find the reduced form of ratio of first number to the second number. Okay, so the first number is 72 and 60 is the second number. So my dear students, here we have to find the ratio between these two numbers. So 72 comma 60. Okay, so in this pair, okay, pair of the number, we have to find the reduced form of ratio. So just we have to divide, and after dividing the number which we get here, so that number is the first number to the second, okay. So the 72 is the first number and 60 is the second. So we have to compare these two number and we have to take the ratio of these two number, okay. So 72 is the first number and 60 is the second number. That means 72 is to 60, that means 72 upon 60. ओके, सो ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 72 और 60 दोनों भी डिवाइड हो सकता है? यस, यू आर करेक्ट, 12 टेबल। 12 5 is 60 and 12 6 is 72. That means 6 upon 5. 12 6 is 72 and 12 5 is 60. Or we can say here 6 into 12 72 and 6 into, yes, so 6 upon 5. 12 6 is 72 and 12 5 is 60. So here we get the ratio that is known as 6 upon 5, that is 6 is to 5. Okay, so here first quantity is 6 and second quantity is 5. So the ratio would be 6 is to 5. Okay, so the ratio will be 6 is to 5. So we will write here 6 is to 5. Is that clear, my dear students? Now question number 1 is done. Question number sub question 1 is done. Here answer is 6 is to 5. 6 upon 5 is nothing but 6 is to 5. So I will rub this and I will write 6 upon 5. Now next question, that is 38 comma 57. So 38 upon 57. Now these two number will divide by 19, okay, because 19 ones are 19, 19 twos are 38 and 19 threes are 57. Okay, so after dividing these two number by 19, we get here 2 upon 3. Okay, so the ratio would be 2 is to 3. Is that clear? So this 2 upon 3 is the ratio for 38 upon 57. Okay, so 2 is to 3. Your answer is 2 upon 3. Now last question, 52 upon 78. Here 52 upon 78 is given. Okay, so here we have to divide these two numbers by 13. So here 52 divide by 13 and 78 divide by 13. We get here 13 4s are 52 and 13 6s are 78. Okay, so 13 4s are 72 and 13 6s are 78. After dividing these two numbers, now 4 and 6 also divide by 2. Okay, now here you can see both are even number.
both get divided by 2. So here 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So the ratio would be 2 upon 3. So final answer will be 2 upon 3 because 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So here answer is 2 upon 3. Is that clear, my dear students? So after dividing this, we get here 2 upon 3. Is that clear? Now let's solve other question. Question number 2. Find the reduced form of the ratio of the first quantity to second quantity. Now here 700 rupees comma 308 rupees. Here we have to take the first quantity to the second quantity and we have to reduce this to ratio. Okay, so 700 का कंपैरिजन जो है वो 308 के साथ है. सो टेक दिस टू क्वांटिटी टुगेदर. सो 700 अपॉन 308. ओके, हियर वी हैव टू टेक द रुपीज. एज यू नो दैट हियर 700 rupees and 308 rupees are given. So we have to compare this two quantity and we have to write this in a ratio form. Okay, so here you can see this. Okay, so they both are rupees. Quantity are the comparison between rupees. Okay, so here 700. First we are solving here sub question 1. So sub question 1 is 700 upon 308. Okay, so here we will write 700 upon 308. So first we will write here our question, that is 700 rupees and 308 rupees. So rupees 700 compared with rupees 308. Okay, we have to reduce the value. Okay, so here 700 is the numerator rupees. Okay, 700 rupees is the numerator and 308 is the denominator. Now this rupees sign will get cancelled. Okay, this 2 rupees sign will get cancelled. So denominator से rupees कट हुआ, numerator से कट हुआ. So here numerator is 700 and denominator is 308. So write here 700 upon 308. So as you know that 1 rupees में 100 पैसा होता है. So divide this 700 divide by 7. So 700 hundreds the 7 multiplied by 100 700 and 7 into 44 which give us 308. Is that clear? So ये दोनों भी नंबर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये दोनों ही नंबर 7 से डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस टू नंबर बाय 7 वी गेट न्यूमरेटर 100 and denominator 44. Again this two number will divide by, yes, 2 5s are 10 and 0 का 0 50 and 2 2s are 4, 2 2s are 4. So now here 50 upon, so here 20, yes, 25. So here 25 upon 11. So here you can see that both this number will divide by 2. So 4 ones are 4 ones are and 4 25s are 100. So 25 4 25s and 4 11s are. That means final ratio will be 25 is to 11. After dividing this number we get here 25 is to 11. Is that clear? Now let's see second question, that is rupees 14 comma 12 rupees 40 paisa. Okay, 14 rupees here. Question number 2 says that rupees 14 comma 12 rupees 40 paisa. So here comparison between rupees plus paisa. So as you know that 1 rupees has 100 paisa and here 40 paisa is given extra. So here in 14 जो है ना उसको हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे. So 14 multiply by 100 कितना हो जाएगा 1400 पैसा. ओके, बट 12 मल्टीप्लाई बाय 100 1200 पैसा प्लस 40 पैसा, दैट मीन्स 1240 पैसा विल बी. ओके, सो अभी हमको कैसा करना होगा, यहाँ पर हमको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होगा. इज दैट क्लियर? बिकॉज यहाँ पर 40 पैसा दिया हुआ है ना. सो हियर क्वेश्चन सेज दैट 1 रुपीज़. ओके, 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा होता है. ओके, सो हियर 40 पैसा इज गिवन, 1 रुपीज़ and here 40 paisa is given. So here we have to compare these rupees with paisa. Okay, so 14 multiply by 100 which give us 1400 paisa and 12 multiply by 100 which give us 1200 paisa. Because question number here we are comparing this question number 2 na, 14 rupees and 12 rupees 40 paisa. So rupees 14 comma 12 rupees 40 paisa. So here numerator will be 14 and denominator will be 12 for rupees 40 paisa. So here convert this rupees into paisa because the second quantity says that 12 rupees 40 paisa. So हमको numerator को भी पैसे में convert करना होगा.
इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो हियर व्हाट वी विल डू, सिंपली हम लोग 14 रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. सो एज यू नो दैट 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 14 रुपीज़ में हाउ मच पैसे? यू आर करेक्ट, 1400 पैसे. इज दैट क्लियर? सो हियर वी विल राइट दैट वैल्यू. ऑल्सो वी विल राइट हियर 12 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे? फिर 1200 पैसे, और प्लस हमें उसके अंदर 40 पैसे को इंक्लूड करना होगा. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स 1240 पैसे विल बी. ओके, सो हियर वी आर इंक्लूडिंग दिस. 40 पैसा तो अलग से दिया हुआ है ना, यू कैन सी हियर 40 पैसा इज गिवन. ठीक है, तो उसको हम कोई कन्वर्शन नहीं करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे दिस 12 में. ठीक है, सो 1200 प्लस 40 पैसा, दैट विल बिकम 1240 पैसा. और यहाँ पर 14 रुपीज़ के पास तो कोई पैसा नहीं है, तो ये 14 रुपीज़ को हम पहले पैसे में कन्वर्ट करते हैं. इज दैट क्लियर? तो जस्ट हमें इसको पैसे में कन्वर्ट करना है. एज आई सेड दैट 1 रुपीज़ में 100 पैसा है, तो अब जस्ट हम यहाँ पर ये इरेज करते हैं और हम यहाँ पर लिखेंगे 14 रुपीज़ में कितने पैसे हैं, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 100. 1 रुपीज़ is equal to 100 paisa. Always remember this, 1 rupees is equal to 100 paise. Is that clear? So we will write here 1 rupee is equal to 100 paise. Okay, now after this 14 rupees is equal to 1400 paise. Rupees 14 na, so here we will write 14 rupees. 14 rupees that is equal to 1400 paise. That is equal to how much? 1400 paise. Okay, so this we have to write here. Is that clear my dear students? So simple and so easy na it is. Yes, now after this 1400 तो हो गया. अभी 12 रुपीज़ 40 पैसे, सो 12 रुपीज़ में भी 1200 पैसे है. सो हियर वी विल राइट 12 रुपीज़. ओके, 12 रुपीज़. ओके, बट 40 पैसे भी उसमें इंक्लूड है, याद रखना. तो पहले 12 रुपीज़ को कन्वर्ट करो, सो 1200 पैसे हो गए. ओके, 1200 पैसे तो इजीली हो गए, बट यहाँ पर 40 पैसे इसमें इंक्लूड है, ये बात याद रखना आपको. ठीक है, तो 12 प्लस 40 1240 पैसे. ठीक है, तो अब हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की कंडीशन लिखनी है. तो न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? 1400. डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? सो 1200 प्लस 40 पैसे, दैट विल बी 1240 पैसे. तो अब यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे 1400 इज द न्यूमरेटर. ओके, अपर साइड पे जो नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं. सो 14 रुपीज़ अपॉन 12.40. ओके, 12.40 डायरेक्टली हम लोग करते हैं यहाँ पर 1400 मल्टीप्लाई बाय 14 रुपीज़. ओके, 14 रुपीज़ अपॉन 12. नाउ हियर यू कैन सी दिस ना, 12 रुपीज़ 40 पैसे, तो 12 रुपीज़ गेट कैंसल. ओके, सो 12 रुपीज़ डॉट डालने का यहाँ पर आपको, और 40 पैसा. ओके, सो हियर 40 पैसे इज गिवन. तो देखो ना, आपको यहाँ पर रुपीज़ के साथ पैसे को भी इंक्लूड करना है. दैट इज़ वाई वी हैव कन्वर्ट दिस रुपीज़ इनटू पैसे ना. सो 12 रुपीज़ कन्वर्ट हो गया, तो कितना हो गया पैसे में? 1200 पैसे. सो 14 रुपीज़ का कितना था? 1400 पैसे. ओके, सो दिस वी हैव कन्वर्टेड इनटू पैसे. ओके, सो हियर रुपीज़ गेट कन्वर्टेड इनटू पैसे. ठीक है, तो यहाँ पर 14 रुपीज़ के साथ कोई पैसा नहीं है, लेकिन 12 रुपीज़ के पास 40 पैसा है ना. सो 14 रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, तो हमको कितना मिला यहाँ पर? यू आर करेक्ट, 14 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 1400. इज दैट क्लियर? 14 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 1400. ये हमने ऑलरेडी ले चुके हैं. ठीक है, सो 1400 ये हमारा न्यूमरेटर हुआ. पैसा तो कुछ है ही नहीं, तो पैसा तो 0 है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर क्या हम लिखेंगे? 0 बिकॉज 14 रुपीज़ के पास कोई पैसा दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में. एग्जैक्टली 0 पैसे, बट 12 रुपीज़ के साथ 40 पैसे इंक्लूडेड है. ठीक है, सो यहाँ पर पैसे को कैंसिल कर दिए. अभी डिनोमिनेटर लिखेंगे. ठीक है, सो नाउ हियर डिनोमिनेटर. ठीक है, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे? 1200. ओके, बिकॉज 12 रुपीज़ इज इक्वल टू 1200 पैसा. 1200 पैसा प्लस इंक्लूडेड 40 पैसे भी दिया हुए क्वेश्चन में. ठीक है, वो क्या है? 40 पैसे है ना. देखिए यहाँ पर लिखना है आपको प्लस 40 पैसे. इज दैट क्लियर? सो अभी यहाँ पर हमारा आंसर कुछ ऐसा होगा, 1400 प्लस 0 पैसे, दैट मीन्स 1400 पैसे. 1400 अपॉन 1240. 1240. अभी कॉमन लास्ट की जो 0 है ना, वो कैंसिल हो जाएंगे. 10 कट फ्रॉम न्यूमरेटर, 10 कट फ्रॉम डिनोमिनेटर. सो हियर 140 अपॉन 124. सो 140 और 124 दोनों भी 2 के टेबल में डिवाइड होंगे. तो 2 के टेबल में 70 से डिवाइड हुआ, और ये 2 के टेबल में 62 से डिवाइड होगा. इज दैट क्लियर? इजीली डिवाइड होगा. देखो ना, 2 7 14, 0 का 0, 2 6 12, 2 2 4. सो 70 अपॉन 62. नाउ 2 के टेबल में 35 से डिवाइड होगा, और 2 के टेबल में 31 से डिवाइड होगा 62. इज दैट क्लियर? बिकॉज 2 इंटू 35 70 and 2 into 31 62. So the final ratio will be 35:31. Is that clear my dear students? So rupees 14, 12 rupees 40 पैसे का जो रेशियो हमको मिलता है वो है 35:31. Is that clear my
dear students. So in this way we have solved question number 2, sub question 1 and sub question 2. यहाँ पर हमें just quantities देखनी है, first quantity to second quantity और उनका reduced form of ratio बताना है. Is that clear? तो first question में हमको 25:1 मिला था और second question में हमें 35:31 मिला है. Now let's solve third question. 5 लीटर, 2500 मिलीलीटर. अभी जैसे आप सबको पता है लीटर्स जो होता है वो लीटर्स जो रहता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू मिलीलीटर के. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर 5 लीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स 5000 मिलीलीटर है उसमें, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है. हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो लीटर का कंपैरिजन मिलीलीटर के साथ करना है, तो यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ऑलवेज रिमेंबर दिस, बिकॉज यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1000 मिलीलीटर. सो 5 लीटर की क्वांटिटी कितनी होंगी? इफ़ 1 लीटर की क्वांटिटी 1000 मिलीलीटर है तो 5 लीटर की यू आर करेक्ट 5000 मिलीलीटर. ओके, सो हियर वी विल राइट 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर. इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5000 मिलीलीटर. अभी हमको 5000 मिलीलीटर का कंपैरिजन करना है 2500 मिलीलीटर के साथ. इज दैट क्लियर? तो इसके ही बराबर बाद हम लिखेंगे 2500 मिलीलीटर. इज दैट क्लियर? सो हियर वी विल राइट 5000 लीटर विल बी द न्यूमरेटर. ओके, सो हियर 5000 लीटर को हमको कंपेयर करना होगा किसके साथ? तो 2500 मिलीलीटर के साथ. ओके, सो हियर वी विल पुट 2500. ओके, सो 2500 मिलीलीटर के साथ हम कंपेयर करने वाले हैं इसको. तो लीटर का कंपैरिजन मिलीलीटर के साथ होने वाला है. दैट इज़ वाई वी आर कन्वर्टिंग दिस लीटर इनटू मिलीलीटर. ओके, तो 5 लीटर का मिलीलीटर कितना हो जाएगा? 5000 मिलीलीटर. सो 5000 विल बी द न्यूमरेटर एंड 2500 विल बी द डिनोमिनेटर. देन हमको क्या करना है? कॉमन जीरो गेट कैंसिल करेंगे और सिंपली डिवाइड करेंगे. सो 5000 मिलीलीटर अपॉन 2500 मिलीलीटर. ओके, सो लास्ट के जो 20 है वो कैंसिल हो जाएंगे. 25 1 25 एंड 25 2 50. दैट मीन्स 2/1 आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनल आंसर 2:1. Okay, so first we will write here 5000 milliliter and 2500 milliliter. Okay, अभी देखो यहाँ पर मिलीलीटर जो लिख रही हूँ ना मैं यहाँ पर वो कैंसिल हो जाएगा. तो here मिलीलीटर गेट कैंसिल और now this 20 गेट कैंसिल. कॉमन जीरो फ्रॉम न्यूमरेटर, कॉमन जीरो फ्रॉम डिनोमिनेटर. ओके, सो 50/25 का ये आएगा 25 2s एंड 25 1s. दोनों भी 25 से डिवाइड हो गए. तो इधर कितना है? 2/1. दैट मीन्स द रेशियो विल बी 2:1. Is that clear, my dear students? Now let's solve question number 4. Question number 4 says that 3 years 4 months, 5 year 8 months. As you all know that here 3 years 4 months is given and 5 years 8 months are given. Okay, so comparison between years and month. सो व्हाट वी विल डू, हम लोग मंथ को और ईयर को कन्वर्ट कर देते हैं मंथ में. एज यू नो दैट 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है. ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है. दैट मीन्स 3 ईयर इज इक्वल टू 36 मंथ प्लस 4 मंथ. दैट मीन्स 40 मंथ हो जाएगा. ऐसा करके हमें कंपैरिजन करना है. तो हम इन सब को मंथ में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स. नाउ 3 ईयर इज इक्वल टू 3 ईयर्स इज इक्वल टू 12 3 इज 36. ओके, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36. क्योंकि अगर एक साल में 12 महीने हैं तो 3 साल में 36 मंथ्स होंगे. ठीक है, 3 ईयर इज इक्वल टू 36 मंथ. दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो हियर 36 मंथ्स और उसमें और 4 मंथ इंक्लूड करने हैं. तो कितना हो जाएगा टोटल? 40 मंथ्स हो जाएंगे. नाउ 5 ईयर इज इक्वल टू 5 ईयर्स इज इक्वल टू 12 5 60. ओके, 12 5 60. सो हियर 5 ईयर्स. ओके, 5 ईयर्स इज इक्वल टू 12 इंटू 5 60 months. Okay, so here we will put 60 months. Okay, 60 months. Now here compare करना है हमें, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखना होगा. So 3 year upon 5 year. 3 year 4 months. So 3 year 4 month. I am using here short form of year. So YR and 4 months. Okay, 4 months. So 3 year 4 month. 4 MON means month. Okay, MONTHS. Okay, here I am finding quite difficulty to write this. So 3 years plus 4 month. So as I told you 3 years में 36 months होते हैं प्लस 4 मंथ इंक्लूड करने हैं. 5 years प्लस 5 years में हमें प्लस करना है 8 months को. ओके, सो हियर 3 years. ठीक है, 3 years प्लस
3 years plus 4 months and 5 year plus 8 months. That means 60 month plus 8, that will become 68 months. So 3 year 4 month, that is equal to 40 months. ओके, कितना हो जाएगा 40 मंथ्स, बिकॉज 36 मंथ के अंदर हमने इसमें ऐड किए 4 मोर मंथ, दैट इज इक्वल टू 40 मंथ्स हो जाएंगे. ठीक है, सो 36 मंथ गेट कैंसल, मंथ्स गेट कैंसल. सो 36 जो था वो आपका न्यूमरेटर था. 36 प्लस 4 क्या हो गया न्यूमरेटर, दैट इज 36 प्लस 4 कितना हो गया 40. ओके, सो दिस इज द न्यूमरेटर एंड 5 ईयर, दैट मीन्स here 12 5 is 60 plus 8. ओके, 60 यहाँ पर लेना है हमको, क्योंकि 12 5 से 60 होता है, 5 ईयर से, इसलिए यहाँ पर 60 हो जाएगा डिनोमिनेटर में. और वहाँ पर हमें और इंक्लूड करना है 8 मंथ्स को. ठीक है, यानी कि ऐड करना है, बिकॉज 5 ईयर 8 मंथ्स दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो हियर 40/68 हो गया, 40/68 हो गया. अभी ये दोनों ही नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 2 20s एंड हियर 2 3s एंड 2 9s, so 39. Okay, so here 34, I'm sorry, 34. So 2 3s are 6, 2 4s are 8, so 20/34. Now 2 10s are 20 and 2 17s are 34. As you know that after dividing this 34 by 2, we get here 17 denominator. So numerator is 10, denominator is 17. So the final ratio will be 10:17. So after dividing, we get here 10:17. Final ratio will be 10:17. Now here find the next question, that is question number 5 says that 3.8 kg, 1900 grams. ओके, 1900 ग्राम्स. नाउ 3.8 kg को हमको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ऑलवेज रिमेंबर दिस, 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं. इज दैट क्लियर? सो 3.8 kg में कितने ग्राम्स होंगे? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 3000 ग्राम प्लस 800 ग्राम, दैट मीन्स 3800 ग्राम्स है. फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो 3800 ग्राम्स की है. सो 3.8 kg इज नथिंग बट 3800 ग्राम्स. सो हियर 1 kg इज इक्वल टू 1000 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3.8 को मल्टीप्लाई बाय 100 किए तो 3800 ग्राम्स हो गया. इज दैट क्लियर? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000. सो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच गिव अस 3800 ग्राम. नाउ हियर 3.8 kg का कंपैरिजन है 1900 ग्राम के साथ. सो 3.8 kg न्यूमरेटर एंड 1900 ग्राम्स डिनोमिनेटर. बट अब यहाँ पर हमको kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पर जो 3800 हमने लिखे थे ना, उसको हम न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखेंगे. तो 3800 न्यूमरेटर हो गया. ओके, आफ्टर दिस 1900 इज द डिनोमिनेटर. अब हम क्या करेंगे? कॉमन जो जीरो है यहाँ पर, ठीक है, 3800 ग्राम्स यहाँ पर लिखे हमने न्यूमरेटर, बिकॉज 3.8 kg इज नथिंग बट 3800 ग्राम आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1000. ओके, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम था, तो 3.8 kg मतलब 3800 ग्राम्स हो गया. अभी यहाँ पर 1900 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1900 ग्राम्स का 1900 ग्राम्स लिखे हमने. अभी यहाँ पर से हम ये ग्राम्स कैंसिल कर देंगे और ये 2 zeros जो है ना लास्ट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, ये भी कैंसिल कर देंगे. ठीक है, तो 38 न्यूमरेटर रहा, 19 डिनोमिनेटर. अब सबको पता है 19 1 19, 19 2 38 आता है. आफ्टर डिवाइडिंग दिस 2 नंबर वी गेट हियर 2/1, क्योंकि ये दोनों ही नंबर 19 से डिवाइड होते हैं. तो 2/1 इज नथिंग बट 2:1. सो हियर फाइनल आंसर इज 2:1. After dividing this, we get here 2:1. Is that clear, my dear students? Now let's solve question number 6. Here question number 6 says that 7 minutes 20 seconds. ओके, दैट मीन्स मिनट का कंपैरिजन यहाँ पर सेकंड के साथ करना है. तो यहाँ पर मिनट्स को सेकंड के बराबर हमको लेना होगा. ठीक है, क्योंकि सेकंड्स जो मिनट के बराबर तो आ नहीं सकते, बट मिनट सेकंड के बराबर आ सकते हैं. ये 20 सेकंड है, इसको क्या मैं मिनट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 20 सेकंड 1 मिनट से बहुत कम है. तो अब हमको क्या करना है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो सबसे पहले पता लगाना है. तो आप सबको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं. ठीक है, हाउ मच सेकेंड? 60 सेकेंड्स. ये हमेशा याद रखना, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60
सेकेंड, ये क्लास 5th में भी आपने करे हो, ये आपको पता होना चाहिए। 7 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? फिर अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड है तो 7 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? सो 6 7 ज़ा 42, दैट मीन्स 420, 67 ज़ा 420 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? 1 मिनट में अगर 60 सेकेंड है तो 7 मिनट में 420 सेकेंड होंगे। अभी 5 मिनट्स को भी हमको कन्वर्ट करना होगा। सो 5 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30, सो 60 इंटू 5 इज 300 सेकेंड। 6 5 ज़ा 30 होता है, तो 60 इंटू 5 कितना होगा? 300, एक जीरो इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 300। ओके, सो 7 मिनट में 420 सेकेंड है और 5 मिनट में 300 सेकेंड है। अभी यहाँ पर हमें 7 मिनट के अंदर जो 420 सेकेंड है ना, उसमें हमको 20 मिनट्स को और इंक्लूड करना है। सो 7 मिनट प्लस 20 सेकेंड, दैट मीन्स 420 प्लस 20, दैट विल बिकम 440, ये याद रखना। सो 7 मिनट प्लस 20 सेकेंड करना है और यहाँ पर 5 मिनट 6 सेकेंड करना है। इज दैट क्लियर? 5 मिनट में कितने थे? 300 सेकेंड, साथ ही यहाँ पर 6 सेकेंड को और ऐड करना है, दैट मीन्स 306 सेकेंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो 7 मिनट का 420 प्लस 20, 420 कैसा आया? सो 7 मिनट से मिला हमें 420, 60 इंटू 7 420 प्लस 20 सेकेंड, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ना 70 मिनट्स 20 सेकेंड, दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस। ओके, सो सेकेंड, आगे सेकेंड लिखना है आपको क्योंकि आपने इसको सेकेंड में कन्वर्ट किया। डिनोमिनेटर में 300, 60 इंटू 5 300, सो 300 प्लस 6 सेकेंड। ओके, 300 प्लस 6 सेकेंड। ओके, सो हियर 6 second we will write here. Okay, now second get cancel, second जो रहेगा common get cancel, so here 440 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 440 अपॉन 306। इज दैट क्लियर? 440 लिए, साथ ही यहाँ पर 306 लिए। अभी इनको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, सेम 2 1 ज़ा 2 और 5 0 था, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, डिवाइड करके हमको क्या आंसर मिल रहा है? 220 अपॉन 153। सो 220 इवन नंबर है और 153 ऑड नंबर है। ठीक है, तो दोनों आगे डिवाइड हो ही नहीं सकता, कंपैरिजन ही नहीं है। सो फाइनल आंसर विल बी 220 इज टू 153। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी गेट दैट आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। अब सबको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम 100 का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम 100 का ही यूज़ करेंगे। और आप सबको यहाँ पर रेशोज़ में 100 दिख रहे हैं, जहाँ पर दिख रहे हैं वहाँ पर तो 100 ठीक है, लेकिन जहाँ नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर स्पेसिफिकली परसेंटेज की साइन मेंशन है। फॉर एग्जांपल 6.25% एंड 0.64%। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन वन बाय वन। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशियो फॉर्म। ओके, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर ठीक से इसको करते हैं, फिर जस्ट अ मिनट ना। या express the following percentage as ratio in the reduced form. So here first question is 75 is to 100. तो यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो हम लेंगे 75 is to 100, दैट इज़ नथिंग बट 75 अपॉन 100। 44 is to 100 इज़ नथिंग बट 44 अपॉन 100। 6.25% है तो 6.25 अपॉन 100। 52 is to 100 इज़ नथिंग बट 52 अपॉन 100 एंड 0.64% इज़ नथिंग बट 0.64 अपॉन 100, यानी कि यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर 100 होगा। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। 75 अपॉन 100, तो आप सबको पता है 25 3 ज़ा 75 and 25 4 is 100 है। So here 75 is to 100 is nothing but 75 upon 100. So here 75 upon 100 is equal to 25 3 is 75. So here numerator is 3. 25 3 is 75 and 25 4 is 100. Okay, so here the ratio is 3 is to 4. Is that clear? So यहाँ पर final ratio हम क्या लिखेंगे? 3 is to 4. After dividing this two number, we get here 3 is to 4. Now let's solve question number 2. 44 upon 100. Now these two number will divide by 4. So 4 के टेबल में 11 ज़ा 44 आएगा और 4 के टेबल में 25 ज़ा 100 आएगा, यानी कि न्यूमरेटर है 11 और डिनोमिनेटर है यहाँ पर 25. इज़ दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो होगा 11 अपॉन 25, दैट इज़ 11 is to 25.
Question 3 says that 6.25%, that means 6.25 upon 100. Okay, so here we have to just divide the 6.25 by 100. So what we will do, simply we will multiply. So multiply by 100 numerator and multiply by 100 denominator. Once you multiply the 6.25 into 100, then the denominator will be then the decimal point will go out. So 6.25 percentage. Okay, so 6.25 percentage is given here. That means 6.25 upon 100. So now here we will multiply this two term by 100, or we can directly divide this two number. So here 6.25 is nothing but 625. So 6.25 divide by here 100. So 6.25 multiply by 100, because we have to remove this decimal point. For that we have to multiply by 100. हमें यहाँ पर से decimal का जो point है उसको remove करना है, तो हम numerator और denominator दोनों ही place से multiply by 100 करेंगे. So numerator में अगर 6.25 multiply by 100 करेंगे तो यहाँ पर से ये decimal point remove हो जाएगा. ठीक है, सो वंस डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा 625. और जब अगर हम डिनोमिनेटर में भी 100 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10,000 मिलेगा. तो फिर हमें डिवाइड कुछ ऐसा करना होगा, 625 डिवाइड बाय 10,000, बिकॉज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 विच गिव अस 10,000. डिनोमिनेटर में भी हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100. आपको पता है कॉमन नंबर होते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पर मल्टीप्लाई होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन नंबर जो है जो दोनों ही प्लेस पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो है 100. ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव करना था, दैट्स वाई वी हैव पुट हियर 100. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 10,000. सो न्यूमरेटर इज 625. आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय दिस 100 वी गेट हियर 625. Okay, so write here 625 upon 10,000. Okay, so upon here 10,000. अब सिंपली आपको पता है लास्ट में 0 है 5 है, तो ये इजीली 5 के टेबल में ही डिवाइड हो सकता है. यस, सो हम यहाँ पर 10,000 हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो गया 625. लास्ट का डिजिट 5 है, सो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग. सो 25 इंटू 25 625. ठीक है, 25 के टेबल में 25 इंटू 25 625 होता है, और 25 400 ज़ा 10,000 होता है. ठीक है, नाउ हियर 25 5 ज़ा 25 एंड 5 8 ज़ा 40, 0 का 0. ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0 का 0, तो 80 आया. 5 1 ज़ा 5. नाउ हियर 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 40. Okay, so here 1 upon 6, that is 1:6. 1 upon 16 is nothing but 1 upon 16. ओके, 5 से डिवाइड हुआ 80, तो कितना मिला 16 मिला डिनोमिनेटर में. सो 1:16 इज द फाइनल आंसर. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सिंपल है, जस्ट आपको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना था यहाँ पर से, इसीलिए आपने मल्टीप्लाई बाय 100 लिए. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 52:100. यहाँ पर 52:100 जो है इसका हमको कंपैरिजन करना है. सो 52 भी इवन नंबर है, 100 भी इवन नंबर है, लास्ट के जो डिजिट्स है वो इवन है 2 and 0, तो ये इजीली 2 से डिवाइड हो सकते हैं. सो यहाँ पर हम लेंगे 52 upon 100. So here 52 upon 100. Okay, so simply हमें इसको 2 से डिवाइड करना है. So 2 into 50 and 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, so 26 upon 50. Here 26, numerator is 26. After dividing this 52 we get here numerator 26, और यहाँ पर आता है डिनोमिनेटर 50. अगेन अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 13 ज़ा 26 है, और 2 के टेबल में 25 ज़ा 50 है. सो 13 upon 50. देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर 13 मिल गया आपको. 2 इंटू 13 26, तो 13 आया, और 2 इंटू 25 वी गेट हियर 50. सो सिंपली 2 से आपने डिवाइड किए, सो 13 upon 25 मिला आपको यहाँ पर. दैट मीन्स 13:25 इज योर आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व last question, that is question number sub question 5. So here 0.64% is given. Yes my dear students, 0.64%. अगेन आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स के बाद है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर 3 डिजिट्स के बाद रहता तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई करते. अगर 3 डिजिट्स के बाद रहता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट है वो रिमूव हो जाएगा. सो डिनोमिनेटर में आपको 100 रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर रेशोज़ कैलकुलेट कर रहे हो, परसेंटेज के रेशोज़ कैलकुलेट कर रहे हो. दैट इज़ वाई वी विल पुट हियर 100 डिनोमिनेटर. नाउ 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है.
ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, आपको मैंने कहा है ना 2 डिजिट से, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 100 लिया हमने। सो न्यूमरेटर में भी 100 और डिनोमिनेटर में भी 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 0.64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो 64 अपॉन 10,000, ओके, 64 अपॉन 10,000। नाउ एज यू नो दैट 8 8 से 64 होता है, ठीक है, ये दोनों ही नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। सो 8 के टेबल में 64 लास्ट का नंबर इवन है तो 8 के टेबल में डिवाइड करेंगे, 8 8 से 64 बिकॉज 8 भी इवन नंबर है। अभी यहाँ पर भी 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के टेबल में 10 तो पॉसिबल नहीं है, तो 8 1 से 8 आया, आगे 2 0 डाल दिए, आगे 2 नंबर डाले बिकॉज आफ्टर माइनस वी गेट ईयर 2, सो 2 रखे, हाँ यस, एंड यहाँ पर 1250, देखो ना पूरा 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1250 मिलेगा, ठीक है। सो 1250 मल्टीप्लाई बाय 8 वी गेट हियर 10,000। अगेन 8 को डिवाइड करना है हमें, तो यहाँ पर हम 8 और 1250 को डिवाइड करने वाले हैं, ओके। सो न्यूमरेटर में जो 8 है वो कट होगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो भी कट होगा। सो 2 4 ज़ 8, 2 6 ज़ 12, हियर 2 6 ज़ 12, 2 2 ज़ 4, 5 में से 4 किया तो 1 बचा, आगे वाले को 0 को दिया हमने 1, 2 2 ज़ 4, वहाँ पर 1 दिए, 2 5 ज़ 10, सो यहाँ पर हुआ 625, ओके, 625। सो हियर द final answer will be 4 upon 625 and the ratio will be 4:625. Is that clear, my dear students? 4:625. Now let's solve question number 4. 3 person can build a small house in 8 days. Here question says that 3 person can build a small house in 8 days. यानी कि 3 पर्सन जो है, 3 पर्सन्स यानी कि 3 पीपल्स है ना, एक स्मॉल सा हाउस बिल्ड करने के लिए 8 डेज लगाते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 डे हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर्ड। वही सेम स्मॉल हाउस अगर हमें बिल्ड करना है 6 डेज में, यहाँ पर 8 डेज नहीं है, 6 डेज में है, तो हमें कितने पर्सन लगेंगे, यानी कि हमें टोटल कितने पीपल हमारे वर्क को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, ये हमको यहाँ पर आंसर फाइंड करना है, ओके। सो 3 पर्सन के लिए 8 डेज लगते हैं, 3 पर्सन 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 6 डेज में कितने पर्सन लगेंगे हमें ये काउंट करना है। सो 3 के लिए 8 है तो 6 के लिए कितना, दैट वी विल फाइंड, ओके, हाउ मेनी पीपल वी रिक्वायर टू कंप्लीट the work in 6 days, okay. So here we are finding this. So 3 person can build a small house in 8 days. To build the same house in 6 day how many persons are required, this thing we are going to find. सिंपल है, देखो अगर आप कोई हाउस प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपके घर में अगर कोई फर्निशिंग का काम है हो रहा है, तो आपके यहाँ पर जो लेबर्स आएंगे वो डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ टाइम कितना लेंगे। अगर ज़्यादा रहेंगे तो कम टाइम लेंगे और अगर यही कम लेबर रहेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। सोल्यूशन, हियर द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन एंड द नंबर ऑफ डेज आर इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। इज दैट क्लियर? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है यहाँ पर। अगर पर्सन ज़्यादा है तो काम कम दिन में होगा, लेकिन अगर पर्सन कम है तो काम ज़्यादा दिन में होगा। सो लेट एक्स नंबर ऑफ अ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस इन 6 डेज। इज दैट क्लियर? हमें फाइंड करना है 6 डेज में कितने पर्सन रिक्वायर्ड है, तो लेट एक्स, यहाँ पर हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए हम एक्स कंसीडर करेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जहाँ पर हमें कुछ पता नहीं रहता है वहाँ पर हम एक्स को अज्यूम करते हैं। सो लेट एक्स नंबर ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड हाउस इन 6 डे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पर्सन मल्टीप्लाई बाय 8। 3 के लिए 8 है, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। 3 person can build a small house in 8 days. So here 3 multiply by 8 and here x into 6, because हमें यहाँ पर पता ही नहीं है कि कितने पर्सन चाहिए रहेंगे अगर हमें 6 डेज में काम फिनिश करना है तो हमारा। तो 3 8 ज़ा 24 एंड x into 6 is 6x. ओके, x into 6 is 6x। पोलिनोमियल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, x से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा। सो x into 6 6x। नाउ 24 इज इक्वल टू x इज, x को साइड में रखना है आपको, 24 न्यूमरेटर 6 डिनोमिनेटर। 6 के टेबल में 24, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। सो 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24। सो x इज इक्वल टू कितना आया आपको, 4 मिला आपको यहाँ पर, यानी कि 4 पर्सन रिक्वायर है। इज दैट क्लियर? 4 पर्सन चाहिए अगर हमको 6 डेज में काम कंप्लीट करना है तो। समझ में आया? इन्वर्स प्रोपोर्शन कैसे हुआ, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे हुआ ये, क्योंकि अगर लेबर ज़्यादा है तो काम कम दिन में कंप्लीट होगा, लेकिन अगर वही हमारे पास लेबर कम रहेंगे तो हमको टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा ना। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो 4 पर्सन रिक्वायर, फाइनल आंसर इज 4 person are required to finish work in 6 days. So here we will write 4 person are required to, here requires, okay, 4 persons are requires
to build the same house. To build the same house in 6 days. To build a same house in 6 days. Is that clear? वही सेम हाउस 6 डेज में बनाने के लिए हमें कितने परसेंट लगेंगे? तो 4% लगेंगे. इज दैट क्लियर? 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? नाउ लेट्स सॉल्व अदर क्वेश्चन. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. अभी हमें यहाँ पर रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो 15:25 इज गिवन. 15:25 इज गिवन. सो व्हाट वी विल डू हियर, 15:25 दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियोज में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स 15/25. 15:25 इज नथिंग बट 15/25. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 15/25 को रेशियोज में कन्वर्ट करोगे. ओके, सो 15/25 जो है उसको रेशियोज में कन्वर्ट करना है आपको. कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज. सो 25 4 ज़ा 100. जो नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है वही सेम नंबर हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे. आप सबको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 25 के टेबल में 100 कब आता है, 25 4 ज़ा 100 आता है. तो वही सेम 4 को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 30%. 25 4 ज़ा 100 and 15 into 4 same number. So 15 4 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60. So here percentage for 15:25 is 60%. Is that clear? तो यहाँ पर आएगा हमारा आंसर 60%. Is that clear? 60/100 is nothing but 60%. Is that clear? तो यहाँ पर फाइनल आंसर कितना हुआ आपका 60%, क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. सो यहाँ पर हमें फर्स्ट का आंसर मिल रहा है 60%. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 सब क्वेश्चन 2. दैट इज 47/50. सिंपल है. अभी डिनोमिनेटर यहाँ पर कितना है 50. अभी इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. सो 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तब हमें मिलेगा 100. डिनोमिनेटर सबसे पहले फोकस करेंगे. 50 2 ज़ा 100. अगर 50 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है दैट मीन्स 47 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा. सो 47 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 47 × 2 इज इक्वल टू 94/100. ओके, 94 is the numerator and 100 is the denominator. So here the final percentage for 47/100 is 94%. 47/50 is 94%. Okay, 94/100 that is equal to 94%. Is that clear my dear students? Now let's solve sub question 3 that is 7/10. अभी यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर 10 है तो 10 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तब जाके हमें डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा. सो 10 10 ज़ा 100 और सेम 10 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 10 ज़ा 70. सो हियर 70/100. सो फाइनल परसेंटेज विल बी 70/100. So final percentage will be that is equal to 70%. Okay, so here 70% is the answer for 7/10. Now let's solve the other question. So here question number 4 says that 546/600. 546/600. Now my dear students, 600 is greater than 100. तो यहाँ पर हम 600 को डिवाइड करेंगे 100 से. ठीक है, 546 भी ग्रेटर है 100 से. सो यहाँ पर ये दोनों ही नंबर 546 और 600 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड होगा 100 से. इज दैट क्लियर? तो सिंपली हमें यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करना है. सो हियर आफ्टर डिवाइडिंग दिस टू नंबर्स फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वंस वी डिवाइड, सो हियर 6 से डिवाइड करें और यहाँ पर अगेन 6 से डिवाइड किए. तो 6 से डिवाइड किए तो हमें डिनोमिनेटर में 100 मिलेगा, क्योंकि 6 के टेबल में 600 कब आता है, तो 6 के टेबल में 100 आता है 600 × 100. सो 6 × 100 600. अभी 546 को हम देखते हैं 6 के टेबल में. हम जब 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें कितना नंबर मिलता है, यानी कितना परसेंटेज आएगा. सो 5 9 5 8 54, 5 8 54, 5 9 6 8 54. सो आफ्टर डिवाइडिंग दिस 6, 546 को डिवाइड करें. सो 6 9 54, 6 9 54 and 6 1 6. सो 54 54 0. नाउ 6 1 6. ठीक है, तो यहाँ पर ये 6 से 6 को माइनस किया. ठीक है, 6 1 6. सो द क्वेश्चन इज 91. दैट मीन्स आवर आंसर इज 91%. ओके, सो 91/100 दैट इज इक्वल टू 91%. ओके, सो हियर वी गेट फाइनल परसेंटेज इज 91%. ओके, now let's solve question number 5 that is 7/16. But before that we will rub all this calculation. Okay, now let's solve question number 5. Question number 5 says that here question number 5 sub question 5 last sub question says that 7/16.
7/16 को हमें डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, ओके। 100 को हम डिवाइड करेंगे 16 से। आई नो दैट आपको एक्चुअल 100 ना मिले, डेसिमल में आपको आंसर मिलेगा, तो वही डेसिमल का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हियर 16 के टेबल में हम 6 लेते हैं। 16 6 हमें मिलता है 96। See here, 100 minus 96 we get here 100. Once we minus this, subtract this, 100 minus 96 we get here 4, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट यूज़ करते हैं, ओके। एंड नाउ हियर 40 ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ हियर 16 के टेबल में 40, 16 इंटू 2 कितना आता है आपको पता है, 38 आता है। तो हमने 16 2 38 लिए, ठीक है। 16 2 नॉट 38, 16 2 32, ओके। सो हियर 16 2 32, आंसर यहाँ पर 8 मिला। 40 माइनस 32 8 मिला। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ज़ीरो और इंक्लूड करना है, क्योंकि जब तक आपको रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं मिलता है तब तक आपको डिवाइड करते ही रहना है। तो 16 5 80 आता है। 16 के टेबल में 5 80 आता है। सो हियर रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि 6.25, ओके। सो 16 इंटू 6.25 करेंगे तो हमको 100 मिलेगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 6.5, ओके। 16 विल मल्टीप्लाई बाय 6.5। जब डिनोमिनेटर में 16 6.25 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 इंटू 6.25, ओके। सो न्यूमरेटर में भी 7 6.25 से मल्टीप्लाई होगा। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 6.25, ओके। सो हियर 6.25 से आपको मल्टीप्लाई करके देखना है 7 को कि कितना परसेंटेज आता है। तो सिंपली आप यहाँ पर साइड में एक वर्किंग निकालो, 6.25 लिखना है आपको और मल्टीप्लाई करना है आपको कौन से नंबर से, यस 7 से, क्योंकि यहाँ पर आप न्यूमरेटर फाइंड कर रहे हो। 7 5 35, 3 गोज अप एंड 5 नीचे आएगा, यस। 7 2 14, 14 प्लस 3 17। सो 17 का 7 नीचे रखो, 1 को 6 के अबव रखो, 7 6 42, 43। सो हियर 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डालो। सो 43.75 यहाँ पर मिला आपको। इज दैट क्लियर? सो 43.75%। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो ये फाइनल आंसर इज 43.75। डिनोमिनेटर में आपने 100 रखी। सो 43.75% इज योर फाइनल आंसर। Is that clear, my dear students? So here we will put 43.75%. Is that clear? Now let's solve other question. So here final answer is 43.75. Now my dear student, let's solve question number 6. The ratio of age of Abha and her mother is 2:5. At the time of Abha's birth, her mother was 27 years. The ratio of the age of Abha and mother is 2:5. ओके तो रेशो कितना है आभा का और उसकी मम्मा का, 2:5 है। एट द टाइम ऑफ आभाज बर्थ हर मदर एज वॉज 27 ईयर। सो अब यहाँ पर रेशोज दिया हुआ है 2:5 का, यानी कि आभा का 2 है और मदर का 5 है। सो 2:5 रेशोज है आभा के लिए और मदर के लिए। और जब आभा का बर्थ हुआ था तब मदर की एज थी 27 ईयर। सो हमें यहाँ पर प्रेजेंट एज फाइंड करने की है आभा की और उसकी मदर की। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। सो ये आभा का जब बर्थ हुआ था तो मदर की एज थी 27। तो अभी जो फिलहाल प्रेजेंट एज है हमें वो फाइंड करना है। तो रेशोज दिया हुआ है और आभा की मम्मी का जो एज था जब वो बर्थ हुआ था आभा का, वो था 27। और आज की जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं पता है, तो उसके लिए हम एक्स की वैल्यू की हेल्प लेंगे। तो लेट द आभाज एज बी 2x एंड लेट द मदर्स एज विल बी 5x। ठीक है, सो इधर लेंगे लेट द एक्चुअल एज भी आभास के लिए x लिए। ठीक है, लेट्स द एक्चुअल एज ऑफ आभा भी x। ओके, आभा के लिए कितना लिया हमने, एक्चुअल एज x लिए। सो हमको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखना है स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या नहीं पता है, हमको आभा की और उसकी मम्मी का एक्चुअल एज नहीं पता है, तो हमने एक्चुअल एज जानने के लिए आभा के लिए हमने x कंसीडर किया है। इज दैट क्लियर? और हमें ये पता है कि जब आभा का बर्थ हुआ था तो मदर की एज 27 ईयर्स थी। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब आभा का बर्थ हुआ था तब 27 ईयर्स था आभा की मदर का, और उनका रेशोज है 2:3, यानी कि उनकी मदर का और उसका आभा का। सो द एज ऑफ द आभास मदर विल बी x + 27। x यानी कि आभा के लिए और प्लस 27 क्यों, जब आभा का बर्थ हुआ था तब उसकी मदर की एज 27 थी, तो x को प्लस करना है 27 से। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, नाउ हियर फ्रॉम द गिवन कंडीशन व्हाट वी हैव टू डू, 2:5 जो है ना यहाँ पर आपको दिख रहा है 2:5, उसका हमको रेशोज लेना है। ठीक है, सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, हमारे सामने जो कंडीशन है ना वो उस कंडीशन के हिसाब से हम लेंगे x + 27 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 2:5, दैट मीन्स 2x + 5x इज इक्वल टू x + 27।
ओके, सो इट इज़ वेरी सिंपल, हम लोग सॉल्व करेंगे. लेट द एक्चुअल एज भी आभा क्या x रखे और मदर के लिए x + 27. तो ये कंडीशन से हमें पता चलता है, गिवन कंडीशन है. सो यहाँ पर 1 by 1 हम लिखते हैं x. ओके, सो हियर x upon here you can write or we can just like this like x + 27. okay, x + 27 किसके लिए है? मदर के लिए. सो x किसके लिए? आभा के लिए. x is to x + 27. x है आभा का एज और x + 27 है मदर का. सो 2:5 था, तो 2 आभा के लिए, 5 मदर के लिए. ओके, सो 2:5 राइट हैंड साइड में हम लोग 2:5 लिखे. ओके, सो नाउ हियर x is to x + 27 इज गिवन. अभी हमको है ना यहाँ पर एक है ना इक्वेशन प्रिपेयर करना है. सो x + 27 है, तो x upon x + 27 लिखेंगे, क्योंकि x is to x + 27 है. is to का मतलब होता है डिवाइड. सो x is the numerator and x + 27 is the denominator. 2 is the numerator and 5 is the denominator. अभी x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x + 27 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 × x 5x. ओके, 5 × x 5x हो जाएगा, क्योंकि x अगर 5 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्योंकि बीच में = का साइन है. सो हियर 5x हो जाएगा, क्योंकि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 5 × x ओके = 2 मल्टीप्लाई बाय, सो 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 ब्रैकेट x + 27. ओके, सो 2 × x 2x एंड 2 × 27 हमको करना होगा. ओके, तो दैट विल बी 52. सो 5x = 2 मल्टीप्लाई बाय x. फर्स्ट 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 को x से मल्टीप्लाई किए हमने, तो क्या मिला हमें? 2x हो जाएगा. ओके, सो यही 2 × x 2x प्लस 2 × 27 करेंगे. पहले 2 × x करेंगे. 2 को 2 × x करें तो हमको मिला यहाँ पर 2x. ओके फाइन, प्लस का साइन डाले यहाँ पर हमने. 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 कितना आएगा? 54 आएगा. ओके, येस. सो हियर 54. येस, यू आर करेक्ट, 54. नाउ 5x का 5x रखे, ये प्लस 2x है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो 5x और 2x को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि पॉजिटिव है ना. सो 5x का 5x रहा, लेकिन 2x पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. तो -2x. ओके, एंड = 54 अपने प्लेस पे ही रहा. अभी 5x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करो और बताओ कितना आता है आंसर. यू आर करेक्ट, 3x आता है. येस, 3x = 54. ओके, 3x = 54. नाउ x साइड में ले लो और 54/3 करो, यानी कि 54 को 3 से डिवाइड करके आंसर कैलकुलेट करो और बताओ कितना आता है. येस, 3 1 = 3 और फिर बाद में 2 साइड में गया, 3 8 = 24, यानी कि 80. येस, सो हियर आपने इसको डिवाइड किए. येस, आपको इसको डिवाइड करना है. x को साइड में लेना है आपको, और 54 को न्यूमरेटर के प्लेस पे लेना है और 3 को डिनोमिनेटर के प्लेस पे लेना है. सिंपली जस्ट आपको डिवाइड करना है. तो आफ्टर डिवाइडिंग दिस नंबर वी गेट हियर 3 1 = 3 एंड येस 3 1 = 3 और 3 के टेबल में 54 कब आता है? 3 18 = 54 आता है सिंपली. सो x = 18 है, यानी कि प्रेजेंट एज जो हमने आभा के लिए x रखे थे, यानी कि आभा की प्रेजेंट एज है 18. इज दैट क्लियर? तो आभा के लिए द एज ऑफ आभाज मदर, ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 18. सो फर्स्ट वी विल राइट द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 18. द प्रेजेंट एज ऑफ आभा, ओके, राइट दिस इन योर नोटबुक. द प्रेजेंट एज ऑफ आभा is 18 years. ओके, is 18 years. ये अभी हमने फाइंड किए हैं. अब हम फाइंड करते हैं मदर की एज. सो मदर के लिए कितना है? x + 18 है, x + 27 है, क्योंकि मदर्स की एज है. एंड द एज ऑफ मदर इज x + 27. सो 18 + 27 आपको करना है यहाँ पर. एंड द एज ऑफ आभास मदर इज 18 + 27. So here yes, mother is so 18 plus 27. So mother will be 18 क्योंकि x + 27 था. सो 18 + 18 x के प्लेस पे 18 रखना है, 18 + 27 करना है. सो जब 18 + 27 करोगे आप, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 45. ओके, सो दैट इज = 45. ओके, सो हियर वी विल राइट 45. सो मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 45 है. 18 + 27 दैट इज नथिंग बट 45. ओके, सो हियर वी विल राइट 45. तो यहाँ पर मदर की एज है 45
और आभा की एज है 18. इज दैट क्लियर? सो द प्रेजेंट एज ऑफ आभा इज 18 ईयर एंड द एज ऑफ आभा's मदर विल बी 18 plus 27, that is equal to 45 years. Is that clear? Now let's solve question number 7. Question number 7 says that present age of Vatsala and Sara are 14 years and 10 years. Okay, present age of Vatsala and Sara are 14 year and 10 year respectively. That means 14 year for Vatsal and 10 year for Sara. Okay, after how many year the ratio of their age will be 5:4. Okay, here we have to find the ratio after how many years. Here we have to find the year, number of year. The ratio will be 5:4. So Vatsal age is 14 year and Sara age is 10 year. And here 5 is for Vatsal and 4 is for Sara. Okay, so Vatsal के लिए 14 years है और Sara के लिए 10 years है. And after how many year the ratio of their age will be 5:4. Is that clear? So this thing we have to find. यानी कि नंबर ऑफ ईयर हमको फाइंड करना है कि कितने ईयर के बाद उनका रेशियो 5:4 होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में. So let's solve this question. So the present age of Vatsal is 14 year and Sara is 10 year. This is given. And after how many years the ratio of their age will be 5:4. So here first thing we will write the statement first. So हम यहाँ पर x को कंसीडर करना होगा. मैंने आपको कहा है ना, जो चीज़ हमें पता नहीं रहती है उसके लिए हम x कंसीडर करते हैं. और यहाँ पर बताया गया है आफ्टर हाउ मेनी ईयर द रेशियो विल बी 5:4. सो 14/10. ओके, 14 ईयर किसके लिए है? वत्सल के लिए है और 10 ईयर है सारा के लिए. और यहाँ पर हमें लेना है ये 7/5. ओके, सो हियर हम क्या करेंगे, जस्ट हमें ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. ओके, सो हियर 1 by 1 वी विल डू दिस. सो नाउ लेट्स फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट. ओके, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख के लेते हैं यहाँ पर. सो जस्ट मिनट, राइट हियर सोल्यूशन. Let after x year the ratio of the age of Vatsala and Sara will be 5:4. ओके, क्वेश्चन में ही था स्टेटमेंट, हमने सिर्फ यहाँ पर लेट कंसीडर किया है. लेट आफ्टर x ईयर, उसके आगे से सेम एज इट इज़ जैसा दिया हुआ है, देयर एज की जगह पे उनका नेम्स लिखना है. सो ऑफ एज ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट विच यू हैव रिटर्न. दैट मीन्स हमको फाइंड करना है यहाँ पर x ईयर को हमको यहाँ पर फाइंड करना है. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल ऐड वन मोर स्टेटमेंट. सो हियर आपको दिख रहा है 14 ईयर्स किसके लिए है? वत्सल के लिए है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 ईयर इज़ फॉर वत्सल एंड 10 ईयर फॉर सारा. सो 14/10. सो 14/10 को हमें यहाँ पर प्लस करना है, 14 प्लस एंड 10 प्लस. सो 14 प्लस एक्स एंड 10 प्लस एक्स, नंबर ऑफ ईयर फाइंड करना है ना हमें, इज इक्वल टू 5/4. 5:4 इज नथिंग बट 5/4. ओके, सो 14 प्लस एक्स वत्सल के लिए है एंड 10 प्लस 4 सारा के लिए. सो 14/x के सामने 5 रखना है और 10 प्लस 4 के सामने 4 को रखना है, यानी कि 5 जो है वत्सल के लिए और 4 जो है वो सारा के लिए. अब क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 14 प्लस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 10 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है. सो 14 मल्टीप्लाई है 14 प्लस एक्स. ओके, सिंपली वी विल राइट हियर 14 प्लस एक्स विल मल्टीप्लाई बाय 4. तो ब्रैकेट बनाओ और ब्रैकेट के बाहर 4 लिखो. ठीक है, समझ में आया? ये हम लोग एक्सपेंशन फॉर्मूले में कर चुके हैं, पोलिनोमियल में भी हमने ऐसे इक्वेशन सॉल्व करे. आपको पता है इज इक्वल टू का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन करना है. अब 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ब्रैकेट बनाओ, 10 प्लस एक्स. ठीक है, 10 प्लस एक्स आपको रखना है. यहाँ पर इरेज करती हूँ मैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है. ओके फाइन. सो हियर 10 प्लस एक्स आपने रखे हैं ब्रैकेट के अंदर. नाउ जस्ट डू द सिंपल कैलकुलेशन हियर. 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है. 14 4 ओके, सो 14 4 इज 56 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 4x. ओके, सो 4 इंटू 14 56 प्लस का साइन डालो, 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू 5 10 50. ओके, प्लस का साइन डालो और 5 इंटू एक्स 5x. इज दैट क्लियर? अभी क्या करना है आपको, x के नंबर को साइड में लेना है और विदाउट x के जो नंबर है उनको साइड में लेना है, यानी कि 56 लेना है और 50. तो 56 से 50 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 50 आया तो वो माइनस हो जाएगा. ओके, 5x का 5x राइट हैंड साइड पे देखो वो ऐसा के वैसे ही रहा, उसमें नो परिवर्तन, नो चेंजेस. बट ये 4x जो लेफ्ट हैंड साइड पे ना वो राइट हैंड साइड पे मूव करने वाला है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में था, राइट हैंड साइड पे आया तो माइनस हो गया. 56 में से 50 गया तो 6 बचा, 5x में से 4x गया तो
x बचा. सो x इज इक्वल टू फाइनल आंसर कितना आया 6 ईयर. इज दैट क्लियर? सो इधर लिखा हुआ है ना आफ्टर हाउ मेनी ईयर. सो आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4. Simple. So after 6 years we will write here statement. The last statement is after 6 year. Okay, just wait. हम अच्छे से लिखेंगे यहाँ पर. सो लास्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हो x इज इक्वल टू 6 मिला है ना हमें, यानी कि 6 ईयर्स है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 ईयर फाइंड कर लिए हैं. तो यहाँ पर हमें यही लिखना है आफ्टर 6 ईयर. आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ वत्सला एंड सारा विल बी 5:4. सो हियर जस्ट हमको यहाँ पर लिखना है क्या देखो यहाँ पर 14 के अंदर हम लोग और थोड़ा सा ऐड करते हैं, इंक्लूड करेंगे 14 अब प्लस 6. ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 14 प्लस एक्स था, डायरेक्ट नहीं लिख सकते. देखो 14 प्लस एक्स, हमें 6x की वैल्यू मिली है. सो अभी आगे भी करना है हमें. तो 14 प्लस एक्स और 10 प्लस एक्स है, उनकी इंडिविजुअल एज दिखाने की अभी. सो 14 प्लस 6 20 एंड 10 प्लस 6 16, यानी कि प्रेजेंट एज जो है वो 20 और 16 हमने लिए. सो 20 4 5 20 एंड 4 4 16. एग्जैक्टली देखिए हमें रेशो मिल गया. इजी है ना, यानी कि 5:4 मिल गया. हमने आंसर भी चेक किए हैं. ठीक है, हमने डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ वत्सला एंड सारा आफ्टर 6 ईयर, ऐसा हमने कुछ नहीं लिखा. हमने सबसे पहले कैलकुलेट करके दिखा है. अब हम लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एजेस 4:2. ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द रेहाना एंड हर मदर इज 2:7. आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 1:3. व्हाट इज रेहाना प्रेजेंट एज? ठीक है, अभी देखो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रेहाना एंड हर मदर इज 2:7, यानी कि रेहाना की एज कितना है, रेशियो 2 है, और मदर के लिए कितना है 7 है. आफ्टर 2 ईयर द रेशियो एज विल बी 1:3. आफ्टर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा 1:3 होगा. सो व्हाट इज रेहाना प्रेजेंट एज? हमें रेहाना की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है. आफ्टर 2 ईयर द रेशियो विल बी their age ratio will be 1:3. so what is the Rihanna's present age? हमें यहाँ पर रेहाना की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है. सो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ रेहाना's प्रेजेंट एज. ओके, वी आर फाइंडिंग दिस. सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा, और जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम यहाँ पर एक्स को कंसीडर करना होगा. एग्जैक्टली. सो व्हाट इज़ रेहाना's प्रेजेंट एज हमें नहीं मालूम है, तो जो हमें नहीं मालूम है उसके लिए हमें एक्स को कंसीडर करना है. सो हियर सोल्यूशन, रेहान लेट द एक्चुअल एज ऑफ रेहाना बी 2x एंड हर मदर इज 7x. ठीक है, रेहाना के लिए 2 है और मदर के लिए 7 है, तो उसके आगे हमको लिखना है रेहाना इज 2x एंड मदर इज 7x. ठीक है, हमें यहाँ पर दोनों में से किसी की भी एज नहीं बताई गई है. ठीक है, तो हमें एक्चुअल एज जो रेहाना की है वो फाइंड करनी है. सो रेहाना के लिए हमने 2x रखे हैं और मदर के लिए हमने यहाँ पर 7x रखे हैं. और क्या कहा है यहाँ पर, आफ्टर 2 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 1:3, यानी कि 2 साल के बाद उनका एज का जो रेशियो है वो 1:3 हो जाएगा. यानी कि रेहाना के लिए 1x है और मदर के लिए 3x है. तो हमें ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर ऐड करना है. तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ओके, सो 2x किसके लिए है, रेहाना के लिए है, और 7x किसके लिए है, मदर के लिए है. और आफ्टर 2 ईयर उनका रेशियो हो जाएगा 1:3. तो यहाँ पर 2x किसके लिए हमने रखे, रेहाना के लिए, और 7x हमने रखे यहाँ पर मदर के लिए. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर प्लस करना है दोनों भी साइड हमें. सो रेहाना के लिए यहाँ पर 2 रहा और मदर के लिए यहाँ पर 2 रहा. कैसे आया ये 2 आपको पता चला, यहाँ पर दिया हुआ है ना आफ्टर 2 ईयर, वहाँ से हमने 2 लिए. सो 2x प्लस 2 ईयर, 7x प्लस 2 ईयर इज इक्वल टू 1:3. सो रेहाना के लिए 1 है और मदर के लिए 3 है. अभी सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि आपको 3 को 2x प्लस 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को 7x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो सबसे पहले 1 को करके ले लेते हैं, सिंपल है ना. 1 मल्टीप्लाई बाय 7x प्लस 2, 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर मिलता है. सो 3 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 2 से. ओके, सो 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 7x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो सेम नंबर मिलेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है. 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 2 6. सो 6x प्लस 3 2 6. ओके, 3 2 6. देखिए हमने पहले 7x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया क्योंकि वो काफ़ी ईजी था, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 1 था. दैट इज़ वाई. नाउ 7x प्लस 2 को हमने एज इट इज़ रखा. ठीक है, नाउ 7x यहाँ पर जो प्लस 6x था ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो माइनस 6x हो गया. 6 अपने प्लेस पे वैसे ही रहा, लेकिन ये प्लस 2 मूव किया राइट हैंड साइड पे तो वो माइनस हो गया. आपको पता है जो नंबर मूव होता है वो साइन भी चेंज हो जाती है. तो 7x में से 6x गया तो x बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा. तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 4 मिल गया. x इज इक्वल टू कितना है 4. तो क्या है 4 फाइनल आंसर है? नो. अभी हम क्या फाइंड करें, यहाँ पर 2x जो है हमने रेहाना के लिए दिया है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा. इज दैट क्लियर? सो 2 4 8 एक्चुअल एज फाइंड करिए ना रेहाना की. दैट इज़ वाई 2 4 8 और 7 4 28. इज दैट क्लियर? 7x मदर के लिए था और x की वैल्यू हमें 4 मिल रही है. सो रेहाना प्रेजेंट एज
ओके, रेहाना प्रेजेंट एज इज 2x that is equal to 2 multiply by 4. ओके, 2 multiply by 4 that is 8, that means 8 ईयर है. रेहाना की प्रेजेंट एज कितनी है? 8 ईयर, बिकॉज 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4. 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा x से, जो x की वैल्यू कितनी फाइंड किया हमने? 4. सो 2 इंटू एक्स इज नथिंग बट 2 इंटू 4. So 2 4s are 8. 2x is nothing but 2 into x. So 2 into 4. X value is 4. So 2 4s are 8. So रेहाना present age is 8 years. Is that clear? अभी रेहाना की तो present age हमें पता चल चुकी है 8 years से, और अगर मदर की फाइंड करोगे तो 7 इंटू हमें करना होगा 4. सो 7 4 से कितना आएगा? 28. यानी कि मदर की एज यहाँ पर दी नहीं है कि हमें फाइंड करनी है, लेकिन मदर की एज यहाँ पर 28 है और रेहाना की एज 8 ईयर्स है. इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इट्स सो सिंपल एंड सो ईजी. मैं चाहती हूँ आप सभी लोग ये सारे सम्स आपकी बुक में अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए भी, ठीक है. और आप अगर लाइफ में आगे मैथ्स लोगे तो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आप अगर बैंकिंग के क्वेश्चंस देखोगे ना तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. नाउ लेट्स सॉल्व प्रैक्टिस सेट 4.2. Now here in this practice set, question number 1 says that use the property a upon b is equal to ak upon bk. Now here k जो है ना, यहाँ पर k जो दिख रहा है आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कांस्टेंट है. 5/7 यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक से, ये बॉक्सेस हमें फाइंड करना है. फिल इन द ब्लैंक सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग. ओके, सो 5/7 है. अभी देखो एकदम सिंपल है. 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 4 28 आता है, ठीक है, यानी कि 5 4 20. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20. 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20 मिला. अभी के टेबल में 35 कब आता है? 35 कब आता है? 5 7 35, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49. सो सिंपल ना, 49 मिला. अभी यहाँ पर 3.5 चाहिए. सो 7 के टेबल में 7 5 35 आता है, लेकिन यहाँ पर 3.5 चाहिए, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर डिवाइड कर लो तो हमें मिलेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड हुआ, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ पर 2.5 मिला. येस, वेरी नाइस, ठीक है, मिल गया, क्योंकि हमको 3.5 छोटा नंबर था ना, दैट्स वाई डिवाइड किए. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 9/14 है. अभी यहाँ पर 4.5 कैसे मिल रहा है हमें? ठीक है, तो 4.5 डिवाइड हुआ, सिंपल 2 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 4.5 मिलेगा. सो इधर 7 मिल गया. ओके फाइन. अभी 9/14 लिया. अभी 42 इज़ द ग्रेटर नंबर, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा? तो मुझे 42 मिलेगा. 14 के टेबल में 3 14 3 42, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. याद रखना डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में भी वही. सो 27/42 मिला. 9/14 के लिए 3.4, देखो ना 3.5 छोटा था तो 4 से डिवाइड किया तो 3.5 मिला. 9 डिवाइड बाय 4 करे तो 2.25 मिला. सो हियर 2.25 जस्ट डिवाइड करना है आपको और कुछ नहीं है. फाइंड द फॉलोइंग रेशियो. द रेशियो ऑफ द रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. The ratio of the circumference of a circle with radius r to its area. फर्स्ट देखो, रेडियस के लिए बोला है सर्कमफ्रेंस, रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, तो r इज इक्वल टू 2 पाई आर. फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का 2 पाई आर. सो रेडियस r अपॉन 2 पाई आर. r कैंसिल किया, 1/2 पाई मिल गया. सिंपल, इट्स सो सिंपल ना, 1/2 पाई मिल गया. नाउ लेट्स सॉल्व अदर. सर्कमफ्रेंस एरिया, सर्कमफ्रेंस इज टू एरिया ऑफ अ सर्कल. सो 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. 2 पाई आर न्यूमरेटर, पाई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर. पाई आर कैंसिल हुआ, 2 मिल गया आंसर. सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2/1. ओके, सो 2/r. सो यहाँ पर देखो ना r मिल गया हमें. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3. द रेशियो ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर. सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज टू साइड ऑफ अ स्क्वायर. सो √2 मल्टीप्लाई बाय साइड. याद रखो ये फॉर्मूलेज है. √2 मल्टीप्लाई बाय साइड इज टू साइड. सो √2 मल्टीप्लाई बाय साइड अपॉन साइड. अभी नाउ साइड कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? √2 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि साइड की वैल्यू ही 7 है. 7 कैंसिल हो गया, √2 आंसर आया. इज दैट क्लियर? तो थर्ड का सब क्वेश्चन का आंसर था √2/1. Now let's solve last sub question. The length of a side of a rectangle are 5 cm and 3.5 cm. Find the ratio of its perimeter of the area. So perimeter of a rectangle is to area of a rectangle. So perimeter of a rectangle का formula है 2 bracket length plus breadth. Okay, और area of a rectangle का formula है length into breadth. So here perimeter के लिए 2 length plus breadth रखे और यहाँ पर 2 length plus breadth मतलब 2 bracket 5 cm plus 3.5 cm. Just multiply करना है. 2 5 10 and यहाँ पर दोनों को प्लस करें 8.5 मिला. So now ये मल्टीप्लाई करके 17 सेंटीमीटर पेरीमीटर हुआ. अभी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड कर रहे हैं. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करना है हमें. 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा 17.5.
स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पर एरिया फाइंड किया। अभी हम देखते हैं पेरीमीटर को एरिया के साथ रेशोज कैलकुलेट करके। तो 17 सेंटीमीटर अपॉन 17.5 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर रेशोज आर सेंटीमीटर कैंसल, सो 17.5 सेंटीमीटर, 17 अपॉन 17.5 सेंटीमीटर। ओके, सो हियर फाइनल आंसर विल बी 17:17.5 सेंटीमीटर। इट्स सो सिंपल ना, एकदम ईजी है। फॉर्मूला अप्लाई करो और सॉल्व करो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ रेशो। अभी यहाँ पर हमको कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशोज दिया हुआ है। देखो यहाँ पर हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, √5/3 और 3/√7। सो अभी यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो 5 को हम क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 मल्टीप्लाई बाय √7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 5 7 ज़ा 35, √35, 3 3 ज़ा 9। सो हियर √35 is less than √35 is greater than √35 is less than 9। याद रखना √35 जो है वो स्मॉलर है किससे, 9 से, क्योंकि यहाँ पर 5 7 ज़ा 35 दोनों भी रूट में थे। ठीक है, तो रूट के नंबर हमेशा स्मॉलर होते हैं। नाउ 3√5 अपॉन 5√7 कंपेयर विथ √63 अपॉन √125। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 3√5 को आप लोगे और यहाँ पर 5√7 को आप लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर 60, यहाँ पर जो 9 7 ज़ा 63 है और यहाँ पर 25 5 ज़ा 125 है। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, 3√5 रखना है, यहाँ पर 5√7 एज इट इज़ रखे आपने, और यहाँ पर 9 का रूट जो है वो 3 है और √7 दिया, 25 का √5 है, तो वो बाहर चला गया, सर्ड टॉपिक की तरह है जस्ट। तो यहाँ पर 3√5 को मल्टीप्लाई किया आपने 5√5 के साथ। ओके, और यहाँ पर 3√7 को मल्टीप्लाई किया आपने 5√7 के साथ। ओके, नाउ हियर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो और 5 का 5 कॉमन ही रहा, √5 कॉमन ही रहेगा, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, नाउ हियर 3 5 ज़ा 15 एंड 7 7 ज़ा 49। अब बताओ कंपैरिजन करके कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। सो 5 5 ज़ा 25 एंड 15 इंटू 7। ओके, सो हियर सिंपल है, आपको करना है 15 इंटू 5 करना है आपको, और 15 इंटू 7 करना है। सो 15 इंटू 5 75 होता है और 15 इंटू 7 105 होता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर ग्रेटर है, 105 इज़ ग्रेटर देन 75। इज दैट क्लियर? जस्ट सिंपल ना, एकदम सिंपल है। जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ हियर 5/18, 17/121। ओके, सो सिंपल है, यहाँ पर 18 को 17 से मल्टीप्लाई करो, ओके, एंड 121 को 5 से मल्टीप्लाई करो। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। सो 121 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 605 मिलता है, और 18 को 17 से मल्टीप्लाई करते हो आप साइड में, तो देख सकते हो आप 18 मल्टीप्लाई बाय 17 करते हैं हम, तो हमें यहाँ पर मिलता है 306। ओके, अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। येस, 605, यानी कि राइट हैंड साइड ग्रेटर है। दैट मीन्स 17/121 ग्रेटर है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो हियर √80 अपॉन √48, √45 अपॉन √27। अब आप देख सकते हो √80 का हम लोग करते हैं 16 से मल्टीप्लाई, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। ओके, नाउ हियर 16 का रूट है 4 और 16 का रूट 4 यहाँ पर लिया, 5 को अंदर लिया और 3 को अंदर लिया, √5 √3 अंदर चला गया। 9 का रूट है 3, सो यहाँ पर 5 और √3 देख रहे हो आप लोग सेम है, तो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है 4√5 मल्टीप्लाई बाय 3√3, यहाँ पर भी 4√3 मल्टीप्लाई बाय 3√3। आई थिंक इसका आंसर इक्वल मिलने वाला है। 4 3 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 सेम, 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 इक्वल। सो सिंपल ना, सिंपल आंसर है, इक्वल मिल गया आंसर हमें यहाँ पर। कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशो। हियर वी आर कंपेयरिंग द रेशो। ओके, सो हियर सी द फिफ्थ क्वेश्चन, 9.2 अपॉन 5.1, 3.4 अपॉन 7.1। सो 9.2 देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हमने रिमूव कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 डायरेक्ट 92 अपॉन 51, एंड यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 92 मल्टीप्लाई बाय 71 हो गया, डेसिमल रिमूव कर दिया हमने, 51 मल्टीप्लाई बाय 34। ठीक है, सो यहाँ पर 92 अगर 71 से मल्टीप्लाई होता है तो हमको यहाँ पर आंसर कितना आता है आप देख सकते हो। सो यहाँ पर हमको आंसर मिलता है 6532 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस। नाउ हियर 34 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 51 से। ठीक है, सो जस्ट हमें 34 को मल्टीप्लाई करना है 51 से और हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 1734। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है, यानी कि 6532 ग्रेटर है। दैट मीन्स 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन 1। ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
The ratio of angle A and angle B of the parallelogram is 5:1. Find the measure of angle B. Here measure of angle B हमको find करना है. तो सबसे पहले हम एक रफ parallelogram draw करेंगे. So A, B, C एंड डी, ये हमारा पैरेललोग्राम का फिगर दिया हुआ है. एंगल ए और एंगल बी का जो रेशो है वो कितना है, 5:4 है. ओके 5:4 है उनका रेशो. हमें फाइंड करना है एंगल बी. ठीक है, यहाँ पर एंगल बी को हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. लेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 5x एंड बी इज इक्वल टू 4x बिकॉज देयर रेशोज आर गिवन. सो 5x इज ए एंड 4x इज बी. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके 180 डिग्री adjacent angle of a parallelogram. They are adjacent angle of a parallelogram. So 5x plus 4x is equal to 180. So 9x is equal to 180. अभी x को साइड में ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पे 180 अपॉन 9 करो, डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 यानी कि 20 आया. 9 को डिवाइड करने 180 से डिवाइड करके. सो x इज इक्वल टू 20 मिला. तो b इज इक्वल टू 4x था. सो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 डाले. सो यहाँ पर मिला आपको 80 डिग्री. सो b इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिली आपको, 80 डिग्री मिली. सिंपल. The ratio of the present age of Albert and Salim is 5:9. 5 year, hence ratio of their age will be 3:4. ठीक है, 3:4 है 5 ईयर के बाद. तो लेट द एक्चुअल प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट बी 5x एंड सलीम के लिए 9x, क्योंकि अल्बर्ट 5x है और सलीम 9x है. फ्रॉम द गिवन कंडीशन 5x और अपॉन 9x लिए प्लस करना है. देखो सेम मैंने पहले भी करा है, 5 + 5 करना है. सो हियर 5x + 5 9x + 5 इज इक्वल टू 3 अल्बर्ट के लिए और 5 सलीम के लिए, तो 3/5. नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. 3 × 9x + 5 एंड 5 × 5x + 5. ग्रेटर नंबर को पहले ही रखो. 3 9 ज़ा 27x प्लस 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 5 ज़ा 25. नाउ x के नंबर को साइड में 27x माइनस 25x, क्योंकि वो मूव कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. 25 और 15 प्लस में था, माइनस में हो गया. सो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2. सो x इज इक्वल टू 5. सो x की वैल्यू 5 मिल रही है, लेकिन हम यहाँ पर प्रेजेंट एज फाइंड कर रहे हैं. तो 15x + 5. सो हियर 5x एंड 9x था. सो प्रेजेंट एज फॉर अल्बर्ट इज 5x. सो 5 × 5 दैट इज 25. तो अल्बर्ट एज की प्रेजेंट एज कितनी है, 25 ईयर्स है. और यहाँ पर सलीम की प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है. सो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सलीम बी 9x. प्रेजेंट एज फॉर सलीम बी 9x. ओके, सो 9x के लिए 9 × 5, 9 5 ज़ा 45. ओके, सो 9 5 ज़ा 45. सो अल्बर्ट की प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स और सलीम की प्रेजेंट एज है 45 ईयर्स. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 3. द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1. यानी कि लेंथ और ब्रेथ कितना है रेक्टेंगल का, 3:1. एंड पेरीमीटर कितना है, 36 सेंटीमीटर है. फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. हमें यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है. सो लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी 3x एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी 1x. ठीक है, लेंथ के लिए 3x रखे और ब्रेथ के लिए 1x. अभी पेरीमीटर फाइंड करना है. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, नाउ हियर 2 का 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 1x. सो 3x प्लस 1x 4x. सो 2 × 4x. सो हियर 36 रखते हैं क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू ही 36 सेंटीमीटर है. सो 36 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8x. सो हियर 36 सेंटीमीटर अपॉन 8. सो x इज साइड में रखे. 8 के टेबल में 36 4.5 मिलेगा. देखो आपको एक्चुअल तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिवाइड करके 4.5 मिलेगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी. तो यहाँ पर आप लोग लेंथ फाइंड कर रहे थे. लेंथ के लिए आपने लिए थे 3x और ब्रेथ के लिए लिए थे 4x. सो 3 × x. सो 3 × 4.5. सो हियर आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट हियर 13.5 सेंटीमीटर. ओके, सो लेंथ इज 13.5 सेंटीमीटर. नाउ फाइंडिंग ब्रेथ. सो ब्रेथ 1x है, सिंपल है, 4.5. 1 × 4.5. 1 × x दैट इज 4.5. सो हियर 1 × 4.5 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर. सो लेंथ इज 13.5 सेंटीमीटर and breadth is 4.5 centimeter. Now let's solve question number 4. The ratio of two numbers is 31:23 and the sum is 216. उनका सम कितना है, 216 है. Find this number. हमको इसका नंबर फाइंड करना है. Let the first number be 31x and the second number is 23x. क्योंकि फर्स्ट 31:23 है, तो 31x लिए और 23x लिए. अभी यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम द गिवन कंडीशन 31x प्लस 23x इज इक्वल टू उनका सम है 216. दोनों को प्लस किए 54x मिला इज इक्वल टू 216. सो 216 न्यूमरेटर और 54 डिनोमिनेटर. डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू मिल गई आपको 4. अभी आपको पता है फर्स्ट नंबर कितना है, 31x है. तो 31x यानी कि 31 × 4. 31 into x that means 31 × 4. We get 124. So first number is 124. Now let's solve second number. Second number is 23x. Okay, so second number is 23x. We are finding here 23x. So 23 × x.
23 into x की value है 4. So here 92 after multiplying. So 124 first number, 92 second number. Now let's solve sub question 5. If the product of two number is 360 and their ratio is 10:9, the ratio is 10:9. Okay, so here ratios are given and product is 360. So let the first number be 10x and the second number be 9x and their product is 360. So 10x plus 9x is equal to 360. So here 10 9 is a 90. 90x square is equal to 360. So x square is equal to 360 upon 9. 90 90 0 0 get cancelled. 9 ones are 9, 9 fours are 36. So here square root for 4 is 2. So x is equal to root 4 is equal to 2. X is equal to 2. So first number is equal to 10x. So 10 multiplied by x, that is equal to 10 into 2. 10 2s are 20. So first number is 20 and second number is 9x. That means 9 multiplied by x. That means 9 into 2. 9 into 2. So 9 2s are 18. So here first number is 20 and second number is 18. Now let's solve question number 5. If A is to B is equal to 3:1 and B is to C is equal to 5:1, then find the value of A cube upon 15B square C, the whole cube. So here A is to B is equal to 3:1. That means A upon B is equal to 3 upon 1. A into 1 is equal to 3 into B. A is equal to 3B. Okay. This we have to write the first statement. Now B is to C is equal to 5:1. Now B upon C is equal to 5 upon 1. These are given in question. So B multiplied by 1 is equal to 5 into C. That is B is equal to 5C. Now here A cube. See here A cube upon 15B square C is given. The whole cube. So first write here 9 cube upon 15 square B. Okay, sorry, A cube upon, this is the first bracket, A cube upon 15B square C. Okay, so this we will write first here. So 3B cube. Okay, so 3B cube upon 15 multiplied by 5C square. And here this is the first bracket. Okay, give this cube sign outside the bracket. So 3 3 is a 9, 9 3 is a 27, 27B cube, 15 multiplied by 5 5 is a 25. So 25C square into C. Okay, so here give here cube root sign outside, cube sign outside. So 27 multiplied by 5C the whole cube, and now here 15 multiplied by 25 is given now. So 25 multiplied by C cube. Okay, C square multiplied by C is C cube. Now here this is the answer. So here the step 27 multiplied by 125 C cube. Okay, because 25 into 5 is 125. So 15 into 25. So 25 ones are 25 and 25 5s are 125. 15 3 is 5 3 5s are 15 and 3 9s are 27. So here after solving this we get here 9 cube upon 729. So here 729 cube is 9 9s are 81, 81 9s are 729. Now here you can see this 729. Okay, so 9 square is A square upon 7BC, that is 3B square. Okay, so here 3B square upon 7 multiplied by 5C into C. Okay, so here 3 3 is a 9, 9B square, 3B square means 9B square, 7 5 is a 35 C square. Okay, so here we will write 7 5 is a 7 multiplied by 5C square, not 7 5 is a 35, 7 multiplied by 5 into C, so 5C square. Is that clear? So 9 multiplied by 5C square upon 7 multiplied by 5C square. So 9 into 5 5 is a 25C square and 7 multiplied by 5. 5 1 is a 5, 5 5 is a 25. So here 9 multiplied by 5 and divide by 7. So here 9 5 is a 45, divide by 7. Okay, finish. Now here last question. Question number 6. 0.04 multiplied by 0.4 multiplied by A is equal to 0.4 multiplied by 0.04 into root B. Okay, and the ratio is A upon B. Okay, so here for this what we will do here, 0.04 multiplied by 0.4 multiplied by root 9 is equal to 0.4 multiplied by 0.4 into B. Okay, here B is given because A upon B. Now here root A upon root B, root A upon root B, because question says that root A upon root B. This ratio we have to find. So 0.4 multiplied by 0.04.
Now here root 0.04 multiplied by 0.4. So here squaring both the side by 0. Here we get root a square, and here root b square. Squaring both the side, we have to just square. So 0.4 multiplied by 0.4 the whole square. Just we have to write here squaring both the side, right hand side and left hand side. So 0.04 multiplied by 0.04 the whole square. Okay, take the square root from both the side, cancel, just do the cancellation. After taking out all the root, we get here a upon b is equal to 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04. जस्ट वो रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर लिए थे. ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई करना है आपको. 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 0.04. ठीक है, नाउ कॉमन गेट कैंसल. a अपॉन b इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.04 अपॉन 1, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है. सो 0.4 को मल्टीप्लाई करें 0.04 से तो 0.016 मिला. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है आपको. 3 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट डालना है. सो हियर 16 अपॉन 1000, क्योंकि देखो ना 3 डिजिट्स थे डेसिमल पे, तो हमने 1000 लिए. सो हियर डिवाइड करें 16 को और 1000 को, तो हमें मिला 4 अपॉन 250, और अगर 4 को डिवाइड किया तो मिला 2 अपॉन 125. सो a अपॉन b इज इक्वल टू 2 upon 125. Now let's solve question number 7. Question number 7 says that x plus 3 is to x plus 11 is equal to x minus 2 is to x plus 1. Then find x. So x plus 3 upon x plus 11 is equal to x minus 2 upon x plus 1. इस 2 यानी कि डिवाइड करना है. सिंपली आपको कैलकुलेशन करना है. x plus 3 को x plus 1 से इज इक्वल टू x plus 11 को x minus 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको. नाउ x इंटू x स्क्वायर आता है. ठीक है, प्लस सेकेंड ब्रैकेट को आपको डबल रखना है, प्लस 3 आउट रखें, x plus 1 अगेन लिखे. ठीक है, यहाँ पर भी आपको x माइनस 2 को आपको 2 टाइम्स लिखना है. प्लस 11 लिखिए आपने, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट ट्वाइस लिखे हमने. नाउ x इंटू x स्क्वायर, प्लस का साइन, x वन ज़ x. नाउ 3 इंटू x 3x प्लस 3 वन ज़ 3. x इंटू x स्क्वायर माइनस का साइन 2x. नाउ प्लस 11 इंटू x 11x माइनस 11 इंटू 2 22. नाउ हियर मेक अ पेयर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर. 11 में से 2x गया तो 9x हो जाएगा. ठीक है, 9x बड़े नंबर की साइन प्लस की थी, माइनस 22. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव था. 4x प्लस में था, 9x प्लस में था तो माइनस हो जाएगा. और यहाँ पर माइनस 22 प्लस 3 था, माइनस 3 हो गया. एक्स स्क्वायर गेट कैंसर. 9x में से 4x गया तो 5x हुआ, माइनस की साइन दिया, इज इक्वल टू माइनस 25. नाउ हियर माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया. x इज इक्वल टू 5 5 25, माइनस कैंसिल हो जाएंगे. सो हियर 5 5 25. सो x इज इक्वल टू 5. सो द फाइनल आंसर विल बी x is equal to 5. Now my dear students, your task is to solve all these sums in your maths notebook. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share my video.